ابن ہوا ماجبین نے فائنلی فیصلہ کر لیا ہے زاہد سے شادی کا۔ کیا زاہد اور ماجبین ایک دوسرے کی شرائط مان جائیں گے؟ کیا وقت رہتے ہی عالیہ ساری سچائی جان جائے گی؟ ابن ہوا کی ایپیسوڈ 14 اور ایپیسوڈ 13 پر آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل محسن کریشنز۔ عید کی ایک لمبی بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی۔ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابن ہوا کی ایپیسوڈ 13 کو بھی ریویو کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کی ایپیسوڈ 14 میں کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایپیسوڈ 13 کی بات کر لیتے ہیں۔ ایپیسوڈ 13 کے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ عالیہ کو اس کی سہیلی آ کر سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے وکی اس کی کریکٹر کے پر انگلی اٹھا رہا ہے اور اس کو اپنی گرل فرینڈ بتا رہا ہے۔ یہ سب سنتے ہی عالیہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے غصہ، اور پھر وہ وکی کی شاپ پر جاتی ہے، اور جو وکی کی اس نے خوب دھلائی کی ہے نا، دیکھ کر کافی زیادہ مزہ آ گیا۔ دونوں جوتیاں اتار کر اس نے وکی کی خوب پٹائی کی دکان پر، اور وکی کو کافی زیادہ سبق سکھایا۔ اب میرے خیال میں یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا وکی اس سب کے بعد باز آ جائے گا، یا پھر وہ عالیہ کے ساتھ مزید کچھ غلط کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ پوائنٹ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ کیا زاہد کے دل میں جو میل پیدا کی ہے وکی نے، کیا وہ ابھی تک دور ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ زاہد کو تو اس حوالے سے کچھ بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے۔ تو دیٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی ان اپ کمنگ ایپیسوڈز۔ دوسری طرف ماجبین بھی کافی زیادہ کشمکش کا شکار ہے کہ کیا اسے زاہد سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں، اور اس حوالے سے ایپیسوڈ 13 کا ایک بڑا حصہ ہمیں فلیش بیک میں نظر آیا، جو سیٹھی صاحب اور ماجبین کی زندگی تھی کیسے وہ سٹارٹ ہوئی۔ کافی زیادہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیٹھی صاحب نے جو ہے ماجبین کو کافی دبا کر رکھا، کافی اس پر غصہ بھی کیا۔ ایک ٹارچر بڑی لائف گزری ہے ماجبین کی سیٹھی صاحب کے ساتھ۔ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ماجبین کو یتیم خانے سے ایک چھوٹی کم عمری میں ہی وہ شادی کر کے لے کر آ گئے تھے، اور وہ اس کے حسن سے کافی زیادہ امپریس تھے۔ اور اس ڈرامہ میں ابن ہوا میں وومنس کے لیے کافی زیادہ ہیٹ ہے یار۔ پہلے ہم لوگوں نے دیکھا زاہد اس کے ابو، اور پھر ہم لوگوں نے اس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جو سیٹھی صاحب ہے ان کے خیالات بھی عورت کے لیے بہت ہی زیادہ برے نظر آئے۔ ماجبین سے وہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ عورت بھائی کا بھائی سے قتل کروا دیتی ہے، عورت ایک آزمائش ہے، اور کافی زیادہ ان کے پوائنٹس سے جو کہ بہت ہی زیادہ تلخ تھے عورت سے ریلیٹڈ۔ جبکہ مہاجبین جب انہیں یہ کہتی ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے مرد کا ایک بہترین ساتھی بنا کر بھیجا ہے، جس پر اسے پر وہ شاؤٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سیٹھی صاحب کی بھی وہ کہانی سنی کہ ان کی پہلے بیوی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بے وفائی کی جب شادی کر لی مہاجبین سے، کیونکہ وہ مہاجبین کے حسن سے کافی زیادہ امپریس تھے۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ جب وہ بیمار ہوئے تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ ایک کافی اولڈ ایج ہو کر انہوں نے ایک بچی کے ساتھ شادی کر کے اس پر بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے پھر بھی نہیں مانی کہ اس ظلم کے باوجود انہوں نے شادی کی اجازت نہیں دی مہاجبین کے کہ تم میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہو، تمہارے پاس میری دولت بھی ہوگی اور تم دوسری شادی بھی کر لو گی۔ ماجبین ان سے کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی کشمکش میں ہوتی ہے ماجبین کے اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں اور اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر لے آتے ہیں، اور وہ رشتہ ان لوگوں نے کیسا ڈھونڈا ہے، ایک بوڑھا لوڑا لنگڑا سا ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا اور ساتھ ڈرپ بھی لگی ہوئی، اور مجھے وہ پیرالسس کے بھی مریض لگے۔ اس قسم کا رشتہ دیکھ کر ماجبین کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اسی مومنٹ پر وہ فیصلہ کر لیتی ہے اب اس کے پاس زاہد سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ماجبین نے فوراً شبراتن کو بلا لیا اور کہا کہ میں زاہد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور آج ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ زاہد سے ملنا چاہتی ہیں، کچھ اس سے
बात करना चाहती हैं। और अब देखना होगा कि क्या वो जाहिद के साथ निकाह कर पाएगी, क्या जाहिद को उसकी शराइत मंजूर होंगी, क्योंकि शराइत दोनों की ही कुछ तल्ख ही हैं। जाहिद किसी मकसद के लिए शादी करना चाहता है, अपनी बहन की शादी के लिए, और जहाँ तक माजबीन का तल्लुक़ है वो हज करना क्योंकि चाहती हैं, तो वो उस मकसद के लिए शादी करना चाहती हैं। तो देखना होगा कि दोनों आपस में इनकी कन्वर्सेशन जो होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड 14 में हम लोगों को नजर आएगी, वो कैसी होगी। दूसरी तरफ नायला की जिंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है ताल्लुक, और वो अभी तक उसे जैद ने कैद किया हुआ है। नायला की माँ शकूर को लेकर आती है वो उसके पास, और शकूर कहता है अगर मुझे पता होता कि जाहिद आपके साथ ये करने वाला है तो मैं कभी आपको वापस नहीं आने देता। और यहीं पर शकूर ने फैसला किया कि अब मैं जाहिद से स्ट्रेट अवे बात करने जा रहा हूँ रिश्ते की। और नेक्स्ट सीन में ही हम लोगों ने देखा कि शकूर जाता है जाहिद की शॉप पर और उससे कहता है कि मैं आपकी बहन का रिश्ता मांगने आ रहा हूँ। यहीं पर शबरातन भी ये सब कन्वर्सेशन सुन रही होती है। जाहिद ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, सिसपा हो जाता है, और उसने थप्पड़ भी मारा एक शकूर को, और वो किसी भी तौर पर शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है नायला की शकूर के साथ। शकूर का यहाँ पर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, आप नायला की किसी लूड़े लंगड़े से शादी करवा देंगे लेकिन नहीं शादी करवाएंगे तो मेरे से। जाहिद की इस हवाले से सोच मुझे कतई तौर पर समझ में नहीं आई है। पता नहीं क्या अजीब उसकी अना है, उसकी ज़िद है कि वो अपनी बहन का इस तरीके से दुश्मन बना हुआ है, अपनी बहन की खुशियों का जनाजा निकाल रहा है। और अगर मैं फिर भी उसकी बात अगर समझ में आती है, अगर वो अपनी बहन का किसी सही जगह रिश्ता करवाना चाहता, उसकी सोच की बुनियाद ही काफ़ी ज़्यादा गलत हमें नज़र आई है इस पूरे ही ड्रामा सीरियल में। और फिर जब जाहिद की फूफो भी आती हैं, उससे कहती हैं कि मैं गारंटी देती हूँ नायला की, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ उसकी, तुम उससे आज़ाद कर दो। और वहाँ पर जाहिद एक बहुत ही गिरी हुई बात करता है अपनी फूफो से कि आप भी तो एक औरत हैं, औरत के खमीर में ही होता है धोखा देना। और आप इससे ज़्यादा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वो नफ़रत करता है औरत से। उसे दरअसल नायला से प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम है तो औरत से, वो औरत से नफ़रत करता है, और उससे बे इंतहा उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, और औरत पर वो किसी भी तौर पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सो यही थी कुछ एपिसोड 13 की कहानी। ओवरऑल इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हमें फ्लैशबैक्स भी नज़र आए, तो स्टोरी कुछ ऐसा हमें मूव होती हुई आगे नज़र नहीं आई, लेकिन ये भी चलो अच्छा है। ये फ्लैशबैक्स हमें किसी ना किसी तौर पर किसी ना किसी एपिसोड में तो दिखा नहीं थे। सो मे बी दैट वाज एपिसोड 13 के जिसमें हमें ये फ्लैशबैक दिखा दिए गए हैं। सो अब आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टोरी फास्टली आगे मूव होती हुई हमें नज़र आएगी। एक्टिंग की बात कर लें तो महाजबीन वाज फैंटेस्टिक, यानी कि हीरामानी काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिंग कमाल की थी। और वो जो बच्ची महाजबीन का रोल कर रही थी, मुझे उसकी एक्टिंग पहले भी जो एक सीन नज़र आए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की नज़र आई थी, और इस एपिसोड में सीन नज़र आया हमें उसका, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती हुई हमें नज़र आई। सो आप बात कर लेते हैं जी इसकी एपिसोड 14 की, और एपिसोड 14 इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। महाजबीन ने क्योंकि फ़ैसला फाइनली कर लिया है कि वो जाहिद के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले वो जाहिद से एक मुलाकात करेगी, क्योंकि जाहिद को उसने अपनी शराइत बतानी है। जाहिद के साथ उसकी होने वाली कन्वर्सेशन नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। महाजबीन यहाँ पर जाहिद से क्लियरली कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे हज पर जाना है, एक महरम की ज़रूरत है जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ पर जाहिद भी उसे अपनी सारी कंडीशन क्लियरली बता देगा। जाहिद से हमें काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं उसकी सोच को लेकर, लेकिन एक बात तो ये तय है कि जाहिद कोई धोखेबाज आदमी नहीं है। तो यहाँ पर वो उसे महाजबीन को क्लियरली कह देगा कि मेरा भी आपके साथ शादी का एक ही मकसद है कि मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूं, और अपनी बहन की शादी करवाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब ये देखना होगा कि महाजबीन उसके साथ कैसी शराइत रखेगी, और जाहिद की जो शादी की कंडीशन है वो सुनकर महाजबीन कैसे रिएक्ट करेगी। इन लोगों की कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन एट दी एंड ये दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को समझेंगे और एग्री कर लेंगे शादी के लिए, और इन लोगों की शायद नेक्स्ट एपिसोड में ही हमें शादी होती हुई नजर आए। अगर नेक्स्ट एपिसोड में ज़्यादा ड्रैग नहीं की गई स्टोरी तो फिर शायद एपिसोड 15 में हम लोगों को इनकी शादी होती हुई
नजर आए, लेकिन इन लोगों की शादी होना तय है। इसमें चाहे वो आलिया की रुकावट हो या महाजबीन के रिश्तेदारों की रुकावट हो, वो किसी भी तौर पर हायल नहीं होने वाली है। बात आ ही गई है आलिया की, तो आलिया भी नेक्स्ट एपिसोड में हमें नजर आएगी महाजबीन के घर, और वहां पर वो देख लेगी जाहिद को, और जाहिद को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक भी जाएगी कि जाहिद यहाँ पर क्या कर रहा है। अब देखना होगा कि या जाहिद उसे सब कुछ सच बता देगा या फिर शबरातन आकर कोई ना कोई गेम डाल देगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शबरातन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो खिचड़ी बना दी है। महाजबीन के साथ शादी करवा रही है जाहिद की, लेकिन आलिया के दिल में भी उसने एक उम्मीद, एक आस जो है वो बांधी हुई है जाहिद के लिए। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे सच्चाई मालूम होनी ही है, और जिस दिन उसे सच्चाई मालूम होगी उस दिन शबरातों ने एक और झूठ बोल देगी और उसके दिल में मैल पैदा कर देगी महाजबीन के लिए कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर सब अपने लिए होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता, तुम्हारी मोहब्बत को ख़रीद लिया है। जाहिद की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर महाजबीन ने उसके साथ शादी कर ली है। सो देखना होगा कि क्या जो हमारी आलिया है, क्या वो अपनी माँ की इन चालों को, इस झूठ को समझ पाएगी या नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी इब्न हवा की आने वाली एपिसोड। आप लोगों ने अपनी आराज़ से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।